Bismillahirrahmanirrahim. Hi everybody, I'm Zahur Ahmed Jamali. I thank my Allah for the blessing that He has granted over me, and I'm really thankful to my viewers for the love and respect that they have shown towards me. At the start of my video, I would like to share something with my viewers. I'm requesting them that subscribe my channel, click the button of liking, share my videos, and put your comments below in the description so that I will know that whether my videos are serving your purposes or not. So, I'm here today to discuss something about speaking English language. That what are the rules and what are the directions that we should follow to speak English language fluently. That what are the ways that I'm going to discuss these ways with all of my viewers and my students and my candidates, all those who they are watching my videos. I'm sharing my knowledge with them. So you know that there are certain rules and parameters for everything that you are going to learn, and you know that today I'm going to tell you that how to give over the English language. That's the way I'm going to tell here. I'm going to tell here to my viewers. As you know that in my earlier video, when I talked about English language, that I said that communication is of two type of sentences. There are the two type of sentences. One the question and second the answer. Somebody asks the question and another person gives the answer. This answer and question answer is called the communication, is called the speech. And I said that what should be the structure of the sentences when you are talking about, you are asking the questions from your friend. So what type of structure of these questions, these sentences should be. And in that video, I already told that, what should be the structure of the sentences when you are giving the answers to your friend. And many more things I already told in that video. That I said that you should give at least 10 minutes to yourself to sit alone and start practicing things over there. And those candidates, those viewers who they do not have the place, do not have the room, they can go to their field and sit along there and do not let the persons interfere in their practice. This is what I'm telling that. I said that give me only 15 days, I will give you the result that how to speak a fluent language. But for that, you have to follow the instructions that I'm going to share here with you. Because you know that one needs a teacher to guide him to the certain destiny, to certain direction that he would like to achieve. And for that reason, you know that I'm sharing many things. Today, I will also tell you that I will produce in front of you the dialogue between two friends, that they will tell you that how to speak English language fluently. तो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँगा कि अंग्रेज़ी को आसानी से आप कैसे बोल सकते हो। जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में कुछ शेयर किया कि भाई अंग्रेज़ी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ जो है हिम्मत अफजाई चाहिए, कुछ जो है थिंकिंग्स चाहिए। तो उसके लिए मैंने बोला कि आप मुझे सिर्फ अपने जो आपका कीमती टाइम है, उसके जो 24 आवर्स हैं, उन 24 आवर्स से आप मुझे 10 मिनट दे दें डेली रूटीन के लिए, रोज़ाना के लिए 10 मिनट में आप क्या करें कि अलग किसी जगह पे आप बैठ जाएं और वहाँ पे आप मेडिटेट करें, आप गौर फिक्र करें। क्या गौर फिक्र करें कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस बनाएं।
क्या बनाएं आप, क्वेश्चंस बनाएं और आप खुद से क्वेश्चंस पूछें कि यार ये जो सूरज उभरता है, ये जो सूरज उभरता है ये क्यों उभरता है। या जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, भाई मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, ये क्यों के जवाब आपको उसके बाद में देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि आप जो है क्वेश्चन कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आप जो है ना अपनी ज़बान को आप जो है ना ट्रांसलेट करो अंग्रेज़ी में। तो सबसे पहले आप जो शुरुआत करते हो अंग्रेज़ी लैंग्वेज सीखने की, वो शुरुआत करो आप सिंपल से, बेसिक से। सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करो, सिंपल और पोलाइट वर्ड्स का, सिंपल और पोलाइट वर्ड्स का आप यूज़ करें। आप सिंपल वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। आप अपने आप को 10 मिनट रोज़ाना दिया करें। आप किसी अलग जाके कमरे में बैठ जाया करें, आप किसी ज़मीन है अगर आपकी तो वहाँ पे भी आप अलग जाके बैठ के आप जो है कर सकते हो। तो इसके लिए तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि इब्राहिम लिंकन जो फाउंडर ऑफ डेमोक्रेसी था, वो जब भी जंगल में जाता था तो खुद से बातें करता था, खुद से तकरीर करता था। तो उस वजह से उस प्रैक्टिस की वजह से वो जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए उसने कैंपेन चलाई तो उसकी जो टॉक थी, उसकी जो स्पीच थी, उसकी जो गुफ्तगू थी इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने उसको वोट देके प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये एक होती है स्ट्रगल। तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता, नहीं मैं आपको कहता हूँ कि आप भाई फीस दो या कोई भी चीज़ दो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ 10 मिनट दे मुझे, आप अपनी कीमती टाइम के 10 मिनट निकाल के आप खुद को दें। आप अपने आप को अलग करें, आप अपने आप को अलग करके उन पे आप जो है ना काम करें। सबसे पहले क्या करें, आप क्वेश्चंस बनाएं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, सवालात पूछो कि ये जो सवालात हैं इनके जवाब क्या होंगे। ये सवाल जवाब। और देखो अगर हम रट्टाफिकेशन मारते हैं, हम रट्टा मारते हैं, कुछ चीज़ें याद भी कर लेते हैं, चलो हमने 10, 15 या 1000 सेंटेंसेस याद कर लिए, वो याद कर लिए तो उससे क्या होगा कि जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे हमें वहाँ के मुताबिक बातचीत करनी होती है। फ़र्ज़ करो अगर आप क्या पे जाते हो, फसल पे जाते हो, वहाँ पे आप एजुकेशन की बात तो नहीं कर सकते ना। वहाँ पे आप तो फसल के बारे में, फसल के उगने के बारे में, फसल के कटने के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। और अब जब आप कहीं पे जाते हो लेक्चर देने, इंग्लिश के बारे में जाते हो, वहाँ पे आप मैथमेटिक्स की बात तो नहीं कर सकते ना, आप तो इंग्लिश की बात करोगे। तो ऐसे ही जब आप शादी ब्याह पे जाते हो तो वहाँ पे आप शादी ब्याह के जो रूल्स हैं उसके बारे में जो गुफ्तगू है वही आप करेंगे। आप इंग्लिश तो वहाँ पे नहीं बात कर सकते ना। तो देखो सिचुएशन डिमांड्स डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम योर साइड। So that's what I'm asking, that your language speaking is dependent on the two things. One the question, second the answer. One the question, second the answer. And if you are good at that, then you can have no problem to speak English language fluently. So for that reason, I today will share something with you that you not remember these things, you not memorize these things, but try to understand that what they talk, what they speak, how they speak, how they form the sentences, how the questions, how the answers. If you understand that thing, how the answer, how the questions, you sit alone. First of all, one thing that I demand from your side, that you go on a separate room, at a separate place, where you starts mediation over the things, over the making questions. First of all, what one needs for the speaking English language, that he should form the questions. सबसे पहले अंग्रेजी ज़बान को बातचीत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सवालात बनाने पड़ेंगे।
क्वेश्चंस। अब जब आप क्वेश्चंस बना लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उन सवालों के जवाब बनाने होंगे। सबसे पहले सिंपल क्या करो, आप सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक देन टू इम्प्रूव द लैंग्वेज। आप सिंपल से स्टार्ट करो। सिंपल का आपको मैंने पहला बता दिया तरीक़ेकार कि भाई जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले तो आप स्ट्रक्चर को समझे यार, स्ट्रक्चर को समझे कि स्ट्रक्चर क्या होती है, इनकी जो बनावट है वो कैसी होनी चाहिए। कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं टू टाइप्स के हैं, VHO वर्ड्स की क्या स्ट्रक्चर होगी और ऑक्सिलरी वर्ब्स की क्या स्ट्रक्चर होगी। सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों पे करना चाहिए। और इन चीज़ों के लिए भी मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि 6 ग्रेड की किताब ले लो, 7 ग्रेड की ले लो, 8 ग्रेड की ले लो, किसी भी ग्रेड की किताब ले लो, वो अंग्रेजी मीडियम की हो, उसको आप पढ़ना शुरू करें। उसको आप पढ़ना शुरू करें, वहाँ उसमें कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आंसर होंगे ना। आंसर्स जो आपका स्टेटमेंट है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते क्या हो, तो इनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई कि VH वर्ड होगा। पहले VH वर्ड होगा। अगर VH वर्ड प्रोनाउन है तो इसके सामने फौरन वर्ब आ जाएगा जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हो। ऑक्सिलरी वर्ब होगा और समटाइम्स क्या होगा कि मेन वर्ब भी आ सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब। और उसके बाद क्या होगा, प्रोनाउन आप कह दे या समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स कह दे या सब्जेक्ट कह दे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि who knocks the door। जब हम घर में होते हैं तो हमें कोई अचानक आके बाहर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू करता है, तो वो हम पूछते हैं कि भाई दरवाजे पे कौन है, Who knocks the door। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, आप बोलेंगे कि I do not know, मुझे पता नहीं। ये जो आंसर्स वाले जुमले होते हैं ये तकरीबन क्या होते हैं कि इनमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब भी जिसको आप कहते हैं होता है, नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और जो है वर्ब होता है जिसको आप स्टेट वर्ब कहते हो। स्टेट वर्ब्स के बारे में मेरे पहले वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि भाई अंडरस्टैंड और जो स्टेट वर्ब जितने भी हैं, मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड है, नाउ है, इनको आप कंटिन्यू टेंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, नोइंग नहीं कर सकते। ये चीज़ों से आपको बाहर आना होगा। ये चीज़ों से असल में तो इशू क्या है हमारा कि हमें जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं उनमें हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भाई इन चीज़ों का करना क्या है, ये चीज़ें हैं क्या। असल में आप जब भी जिसको भी पढ़ाते हो तो आप उसको ये तो बताओ कि भाई हम पढ़ा क्या रहे हैं। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। तो देखा आपने देखा कि ये तो स्ट्रक्चर भाई सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब ये सारा वर्ब है। समटाइम्स कुछ टाइम ऐसा होता है कि स्टेट वर्ब्स ऑब्जेक्ट्स टेक नहीं करते। और मैंने आपको बताया था, मैंने वर्ब के बारे में जो कंप्लीट वर्ब का लेक्चर है मेरा वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया कि जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स अपने साथ नहीं उठाते। तो स्टेट वर्ब भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। आई डोंट नो, ये स्टेट वर्ब इंट्रांजिटिव नहीं है। आई डोंट नो यू, तो ये डोंट नो जो है वर्ब है और नो जो है, यू जो है ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा था कि स्टेट सेंटेंस जो आपके आंसर वाले जो जुमले होंगे वो 3 चीज़ों पे तकरीबन मुश्तमिल होंगे। अगर आप सिंपल में बात करोगे तो कौन सी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा। मैं फर्दर चल के आपको बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन मार्क से और एक बात मैं आपको जो स्पीक करना चाहते हैं एस्पायरेंट, दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो हियर मैं बताता चलूँ
कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड्स जो है जो ये VHW वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये आपके जो है इनको आप कहते हो ओपन क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपकी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं और इनका जवाब जो है स्टेटमेंट में होगा। इनका जो आप जवाब दोगे स्टेटमेंट में होगा, जैसे कि हु नॉक्स द डोर, हु रेप्स द डोर, हु नॉक्स द डोर, हु रेप्स द डोर, आई डोंट नो हु, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि कौन बजा रहा है, कौन खटखटा रहा है। तो चलो ये, और जो ये अक्षरी वाप से जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब, उनको आप कहते हो क्लोज क्वेश्चंस। क्लोज क्वेश्चंस इनको हम क्यों कहते हैं कि इनका रिप्लाई जो आप करते हो येस और नो में करते हो, इसलिए इनको हम जो है ना क्लोज कहते हैं। और उस दिन मैंने बताया कि भाई बात को आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस, बट आप विच को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस ना हो, लिमिटेड ऑप्शंस हो। सो आई विल एंड हियर. My purpose to describe these things again is that I would like to clear the mind of the viewers, clear the mind of the candidates, that they should make clearance about the thing that they are learning. So actually वर्ब से आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब yes no में होंगे, जैसे कि do you speak English, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? तो इसका जवाब होगा, अगर आप बोलते हो तो आप बोलेंगे येस आ लिटिल, येस आ लिटिल, हाँ थोड़ी बहुत आती है मुझे, ज़्यादातर तो मैं नहीं जानता लेकिन थोड़ी बहुत मुझे आती है, येस आ लिटिल। अगर आपको नहीं होगी तो आप कहेंगे नो, आई डोंट नो, आई नो, नो, आप नो में भी जवाब दे सकते हो। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा, एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक डायलॉग मैं आपको बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा। वो जो बंदे होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास भाई कोई अपना कलीग नहीं है, कोई अपना दोस्त नहीं है गुफ्तगू करने के लिए, तो वो एक इमेजिनरी बंदे को ला सकते हैं, तस्वुराती बंदा, जो ख्याली बंदा होता है, जो बंदा होता ही नहीं है उसको हम ख्याल में लेके आते हैं कि भाई हम सबसे अकेलाई में, जैसे हम खुद से अकेलाई में कभी कभी बातें करते हैं, गुनगुनाते हैं, ये वो करते हैं, तो वो अकेलाई में भी किसी बंदे का नाम लेके इमेजिनरी पर्सन को ला के बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो मिरर्स में भी देख के भी बात करते हैं। और आज तो यार ये जो है ना मीडिया का दौर है, आप मोड ले लें, उस पर आप जो है ना मोड से आप रख के अपना वीडियो बनाएं, आप वहाँ पे टॉक करें कि आपकी जो टॉक है, आपकी जो स्पीच है कैसी दिख रही है। Start talking for 10 days, sit alone and start making practice over the things, and you will build a confidence. You will build a confidence, and that confidence will lead you to speak English fluently. There's nothing. So I will share with you many other things. Our practice over the dialogue I will share here. I want to share a story of you. I want to share here a story with you about myself. Of myself, I would like to share a story. Today, early in the morning at 9 o'clock, when I was sitting at the van stand, जब मैं आज नवाबशाह जा रहा था तो मैं वैन स्टैंड पे सिटिंग कर रहा था, मैं बैठा था वैन स्टैंड पे। तो चलो मैं उसके बारे में आपको नहीं बताता, चलो जो मेरा ज़ाती है, मैं आपको कोई और स्टोरी सुना देता हूँ, कोई इमेजिनरी तस्वीर होती है। तो चलो आप किसी वैन स्टैंड पे बैठे हो, कोई स्टॉप पे आके बैठे हो, या किसी गाड़ी में आप बैठे हो,
आप गाड़ी में बैठे हो, कोई और बंदा भी आके चढ़ के गाड़ी में बैठ जाता है, कोई और बंदा भी आपके करीब कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई और बंदा भी आके, तो आप टास्क कैसे शुरू करेंगे? आपका वो रिलेटिव है या कोई आपका दोस्त है जो 10-20 साल से आपके नज़र में नहीं आया, नहीं आपसे उसने बात की, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा वक्फे के लिए वो आपसे मिला जुला नहीं, तो आप उससे बात कैसे स्टार्ट करेंगे? हियर कम्स हे Ali, hey Ali, how are you well? क्या आप ठीक हो? फॉर एग्जाम्पल here अशफाक ले लो, एजाज ले लो यार, एजाज ले लो, कोई भी नाम ले लो, समित्रा ले लो, एजाज ले लो, अजीज ले लो, कोई भी ले लो, नाम की कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कहा देखो, हे Ali, are you well? Ali, I am good. And what about you? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? तो ये इजाज बोलेगा, मैं इसका ऐसे ही कर देता हूँ, I'm amazing. I'm amazing. मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत खुश हूँ। नहीं भाई, कोई भी नहीं आया भाई, जाओ यार, काम है मुझे यार। I'm amazing. Ali, great. Take this seat. उसी पे बैठ जाओ, ये सीट ले लो। अब ये कहता है अली कि उसी पे बैठ जाओ, ये सीट ले लो। इजाज कहता है सॉरी, अब ये कहता है, ये नामों का जनरेट जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इजाज कहता है इसे, long time no see, काफी सारा टाइम हो गया, आप तो मिले ही नहीं। आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हो या ये भी दे सकते हो, ये कोई मसला नहीं होता। जब आप स्पीक करते होते हो तो कोई मसला नहीं होता पंक्चुएशन का। लॉन्ग टाइम नो से, काफी टाइम गुजर गया, आप तो मिला ही नहीं, आपको तो काफी टाइम गुजर गया है। तो आप ऐसे गुफ्तगू की शुरुआत करोगे, जैसे चेक करो, दिख रहा है? वन टाइम नो सी, तो अली बोलेगा, अली क्या बोलेगा? यस I have been busy. I have been busy with my college.
with my study in college. मैं पढ़ाई में मसरूफ था, मैं पढ़ाई में मसरूफ था। तो आदमी बोलेगा कि मैं पढ़ाई में मसरूफ था। अब आदमी पूछता है एजाज से, यहाँ पे क्वेश्चन करता है, कहता है कि व्हाट अबाउट यू। मैं तो चलो आपसे नहीं मिला, लेकिन आप कहाँ थे, आपका क्या हुआ, आप क्या थे। तो ये मैं इसको उतारूं। तो जस्टिन ही होंगे, जस्टिन का भी मसला है, क्या करें इसमें। पता नहीं किसका था, अली का नंबर था या किसका था, पता ही नहीं। अब चलो हम एजाज से शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं। कोई गड़बड़ अगर हो जाती है तो आप भाई आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कोई मसला नहीं है। एजाज से शुरू करते हैं। सेम सेम I have been busy with college too. मैं भी कॉलेज में मसरूफ था, मैं भी पढ़ाई में मसरूफ था। अब बोल रहा है व्हाट आर यू डूइंग। मैंने क्या बोला था कि आपकी जो गुफ्तगू है क्वेश्चन और आंसर पे, अगर आपको क्वेश्चन और आंसर बनाने आ जाते हैं तो आप स्पीक कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग। ये जाली कहता है आई, कहता है सारी, आई जस्ट फिनिश माई ग्रेजुएशन। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। अपने आगे कहता है आई एम लुकिंग फॉर जॉब। मैंने अभी अभी डिग्री मुकम्मल की है और जॉब के लिए देख रहा हूँ। What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उससे पूछता है। तो एजाज कहता है आई एम डूइंग इंटरमीडिएट कहो, MA कहो, जो भी कहो, इंटरमीडिएट फ्रॉम द कॉलेज at nearby here। जो यहाँ पे कॉलेज है ना, वहां से मैं इंटर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो कॉलेज है वहां से इंटर कर रहा हूँ। भाई वो उठा
तो इसको आप उतारोगे, एजाज है सारी। अली से स्टार्ट होगा। अली कहता है दैट्स नाइस, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे पूछता है हाउ कम यू आर ऑन द वेन, कि आप वेन पे कैसे आए, आपका वेन पे आना कैसे हुआ, कि आप वेन पे कैसे आए, आपका वेन पे आना कैसे हुआ। ये एजाज कहता है माय कॉलेज इज हियर एट नवाब शाह, माय कॉलेज इज हियर एट नवाब शाह, माय कॉलेज इज हियर एट नवाब शाह, at Nawab Shah. So I travel here every day on the way. मेरा जो कॉलेज है वो नवाब शाह में इधर पे है, तो इस वजह से मुझे रोज़ाना ट्रेन में वेन में सफ़र करना पड़ता है या बस में सफ़र करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप बात करोगे। तो अभी अब हम इसको इधर पे ख़त्म कर रहे हैं, गुफ्तगू को ज़्यादा नहीं किया, तो सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आप गुफ्तगू को कैसे शुरू कर सकते हो और कैसे ख़त्म कर सकते हो। अब ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप बोलोगे तो आप अगर एक सवाल आप अब अली पूछता है, अली कहता है कि हाउ, एजाज से पूछता है कि हाउ कम यू आर हियर ऑन वेन, आप वेन पे, आपका वेन पे आना कैसा हुआ, आप कैसे वेन पे आए, आपका वेन पे चढ़ना कैसे हुआ, आप वेन पे कैसे आए। वो कहता है, एजाज कहता है कि I have an important appointment with the professor of your college. Professor of your college. So I decided to take this van. तो blow this van, blow भी कह सकते हो, take भी कह सकते हो, blow भी कह सकते हो। Board this van.
वैन। अब आप गुफ्तगू को खत्म कर रहे हो, फर्ज करो कि अब आप गुफ्तगू को खत्म कर रहे हो। अभी अली खत्म करेगा, कैसे खत्म करेगा कि अब अली बोलेगा, अब जब वो अलग होंगे, अब उतरने वाले हैं, वो बोलेगा वेन हैज रीचेड, वैन हैज रीचेड। तो भाई वैन तो पहुंच गई है, अब मुझे क्या करना है? अब वेन रीचेड कर रही है, तो अली अब बोलेगा, अली फर्दर बोलेगा कि वेन हैज रीचेड, आई एम हैप्पी टू सीइंग यू टुडे। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मैंने आपको देख के बहुत खुशी महसूस की। तो वो भी अब बोलेगा, एजाज भी बोलेगा। एजाज क्या बोलेगा? आई एम आल्सो हैप्पी टू मीट यू। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अब वो अली बोलेगा, क्या बोलेगा कि अली बोलेगा I will see you again. I will see you soon. बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वो भी बोलेगा कि I will also see you again. मैं भी आपसे दोबारा मिलूंगा। तो ये बोलेगा I will see you again. Till then, take care of yourself. Care of yourself. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय कह देगा। ये भी कहेगा I will also see you again and take care of yourself. कहेगा बाबा, care of yourself. यार बड़ी yourself. बाय। तो ऐसे आपकी गुफ्तगू पूरी हो गई। अब गुफ्तगू को कोई बड़ी बात तो है नहीं, कि इतना बड़ा मसला तो है नहीं। So with this, I will end my lecture today, and I will see you again. I would like to thank you again for watching my videos and sharing my videos and giving me likes and putting your comments below to the descriptions. Okay, goodbye.